Today we will discuss the topics uniform and uninformed and informed search. Uninformed and informed search is most valuable part of artificial intelligence. And yesterday we discussed what is neural network. As you read this article, in neural network, which organ is your body is thinking about in, and which brain, of course, but do you know how the brain works? Well, it has neuron or nerve cell that are primary unit of both an brain and nerve system. This neuron receives sensory input from the outside world, which they process and then provide the output which might act as the input to the neuron. Neuron में होता है क्या? What is the main function of neuron? Is collect input and then he analyzes the input and next send to the other neuron. And the neural network works. What are the neural networks? तो पहले दिन मैंने बोला था, these are units. These units are arranged in a series of layers and together constitute the whole artificial neural network. And उसका काम क्या है ये भी मैंने बोला था. How do artificial neural network learn and work? What are the types of artificial neural network? Feedword neural network, recurrent neural network, सब कुछ मैंने बोला था. And today is the topic is actually the application of artificial neural network वो रह गया था. एप्लीकेशन क्या क्या में न्यूरल नेटवर्क का एप्लीकेशन होता है. व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क? सोशल मीडिया. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड टू हेवीली इन सोशल मीडिया. फॉर एग्जांपल मैंने बोला था people you may know features on Facebook that suggest you people that you might know in real life so that you can send them friend request. Well, this magical effect is achieving by using artificial neural network that analyze your profile, your interest, your current friends and various other factors to calculate the people you might potentially know. Another common machine learning is in social media in facial recognition. This is done by finding around 100 reference points on the person face and then matching them with those already available in the database using convolutional neural network. उसका काम क्या होता है? फेशियल रिकॉग्नाइजेशन न्यूरल नेटवर्क कैसे यूज होता है? वहां पर कोई अगर नया फोन खरीदे तो उसका 100% उस फेस का एक डेटा रिकॉर्ड होता है उस मशीन पर. एंड नेक्स्ट जब कोई फोन ओपन करता है और फेस रिकॉग्नाइजेशन करता है तो अगर उसका सही तरीके से रिकॉग्नाइज हुआ और हेलो site neural how to use in neural network in social side. बोला फेस रिकॉग्नाइजेशन में मशीन लर्निंग कैसे यूज होता है वो भी मैंने बोला. ठीक है. तो नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स. मार्केटिंग एंड सेल्स में न्यूरल नेटवर्क कैसे यूज होता है? समझो when you log onto e-commerce site
like Amazon and Flipkart, they will recommend your product to buy based on your previous browsing history. क्या होता है, अगर हम लोग सोशल साइट लाइक Amazon, Flipkart में कोई भी चीज अगर हम लोग फोन पर सर्च करते हैं, समझो गूगल पे तुम कोई वेडिंग सेशन के लिए तुम कोई मैरिज हॉल और बैंक्वेट देख रहे हो कि बैंक्वेट कैसा होगा, उसका प्राइस कैसा होगा, अगर कोई एयरपोर्ट में घूमने जाने के लिए कोई समझो बाली, इंडोनेशिया और वहां पर कोई बैंकॉक का कोई रिसोर्ट देख रहे हो, तो क्या होगा, फिर तुम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर और अदर्स कोई भी चीज जो ऑनलाइन तुम सर्च करोगे तो तुम्हारे सजेशन में क्या आएगा, सबसे कीमती जो होटल है, जो सबसे अच्छा बीच होटल है, वो तुमको शो करेगा। वो तुम्हारा वहीं पर क्या काम होता है, न्यूरल नेटवर्क यूज होता है, वो चीज ख्याल रखना। तो सेम होता है ई कॉमर्स साइट पर, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर, अगर हमने कोई प्रोडक्ट देखा तो जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, उस प्रोडक्ट शो करेगा, क्योंकि वो पहले ही हम लोग ब्राउज कर चुके हैं। तो व्हेन यू लॉग ऑन टू ई कॉमर्स साइट लाइक Amazon and Flipkart, they will recommend your product to buy based on your previous browsing history. Similarly, suppose you love pasta, then Zomato and Swiggy, you will show your restaurant recommendation based on your taste and previous order history. अगर तुम प्रीवियस ऑर्डर हिस्ट्री में कोई भी रेस्टोरेंट से कोई कुछ भी ऑर्डर किए हो जोमेटो एंड स्विगी पर, तो अगर तुम कोई खाने का चीज वहां पर सर्च करोगे तो वो रेस्टोरेंट का नाम पहले आ जाएगा और उस रिलेटेड जो मिलेगा वो पहले ही आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, this is true across all new age marketing segment like book site, movie service, hospitality site, etc. And it is done by implementing personalized marketing. This uses artificial network to identify the customer like, dislike or previous shopping history and then tailor and marketing campaigns accordingly, ठीक है। और हेल्थ केयर में क्या होगा, हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज कैसे होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड इन ऑन्कोलॉजी टू train algorithm that can identify cancer tissue at the microscopical level at the same accuracy as trained physician, and various rare diseases may manifest in physical characteristic and can be identified in their parameter stage by using facial analysis on the patient photo. So full scale implementation of artificial neural network in the healthcare environment can only enhance the diagnosis abilities of medical expert and ultimately lead to the overall improvement in the quality of medical care all over the world. तो हेल्थ केयर में क्या होगा, अगर तुम्हारा कोई कैंसर हो या कोई अलग सा कोई डिजीज हो, तो वहां पर क्या होता है, तुम जो रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट वहां पर अगर अपलोड होता है तो पहले जो पेशेंट का कोई उस तरीका का कोई बीमारी होगा व उस तरीका कोई सिम्टम्स होगा, तो वो न्यूरल नेटवर्क सर्च करेंगे और उसके साथ कंपैरिजन में आएगा कि कैसा कैसा मील है और कैसे सिम्टम्स है, तो ऐसे वो एनालिसिस करता है, फिर उसका एक रिपोर्ट देता है। पर्सनल असिस्टेंट में हम लोग कैसे यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम लोग पहले से ही सिरी और एलेक्सा, कॉर्टेना, इस सब चीज का नाम सुने हो, and also had them based on the phones you have. There are personal assistant, an example of speech recognition that uses neural language processing. NLP मैंने पहले ही बोल दिया, NLP में क्या होता है, वो गूगल असिस्टेंट जो होता है, सिरी, एलेक्सा, उसका लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है।
to interact with the user and formulate a response accordingly. Natural language processing uses artificial neural network that are made to handle many tasks of the personal assistant, such as managing the language syntax, symmetry, correct speech, and conversational that is going on. ठीक है, तो ये 4 चीज है जहां पर न्यूरल नेटवर्क बहुत ज्यादा यूज होता है। सोशल मीडिया, हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। वो मार्केटिंग में एड वगैरह जो होता है और जो भी चीज मार्केटिंग में होता है, तो सभी न्यूरल नेटवर्क से ही मालूम चलता है कि कौन चीज का डिमांड ज्यादा है और मार्केट में कौन चीज आना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट आएगा स्टेट स्पेस सर्चिंग। स्टेट स्पेस सर्चिंग क्या होता है? देखो, स्टेट स्पेस सर्चिंग एक फॉर्मूला है जहां पर हम क्या करते हैं, एक ऑनलाइन गेम जो होता है, ऑनलाइन प्रोग्राम और ऑनलाइन गेमिंग, वहां पर स्टेट से सर्चिंग से न्यूरल नेटवर्क वो रिजल्ट निकलना चाहती है कि वो रिजल्ट कैसे होगा। स्टेट स्पेस सर्च इज ए प्रोसेस यूज्ड इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस and including artificial intelligence, which successive configuration of state of an instance and considered। अगर हम लोग कोई एक प्रॉब्लम कंप्यूटर में देंगे तो वो प्रॉब्लम पहले ही तुम सॉल्व कर लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके बीच में कोई स्टेप होगा। दो बार या 3 बार तुम लोग टाइम लेके वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व कर सकते हो। तो इस बीच में जो आएगा वही होगा स्टेट स्पेस सर्चिंग। एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर देखो, ए से स्टार्टिंग ये प्रोग्रामिंग है, समझो। ए है ऑल पॉसिबल एक्शन, जो एक प्रोग्राम में हम लोग लेते हैं, रिजल्ट आएगा और उसका कॉस्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, समझो यहाँ पर क्या हो, एक है 8 पजल प्रॉब्लम है। इस पजल का स्टार्टिंग नोड क्या है, 2 3 4 1 6, इस तरीके से एक स्टार्टिंग नोड है। और ये 3x3 एक पजल है और उसका गोल स्टेट क्या है, 1 2 3, इस तरीके का एक गोल स्टेट है। तो स्टार्ट प्रोग्राम है ए और गोल स्टार्ट स्टेट है ए और गोल स्टेट है इस पजल। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर इसको सॉल्व करेगा, ये तो हम लोग हाथ से तो सॉल्व कर देंगे, कैसा करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर में खुद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो कैसे करेगा। यहाँ पर देखो, हम लोग जब कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उस गेम्स का कोई रूल है और उस गेम कैसे ओपन होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो तो हम लोगों को पहले से मालूम नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वो गेम कैसे खेलते हैं और गेम का स्टार्ट प्रोसेसिंग क्या है, वो हम लोग एक किसी से हम लोग समझते हैं कि कैसे गेम खेलेंगे। तो वो एक प्रिसाइजली रिप्रेजेंट करते हैं कि गेम इस तरीके से स्टार्ट होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस गेम को एनालिसिस करते हैं कि गेम कैसे हम लोगों को खेलना है और कैसे विन होना है। तो इस तरीके के 2 स्टेट होगा, प्रिसाइजिंग, रिप्रेजेंटली एंड एनालिसिस। तो इस गेम में क्या होता है, हम लोग ये जो नंबर है, ये अप डाउन लेफ्ट राइट, इस 4 तरीके से इस नंबर को हम लोग ऊपर या नीच, राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। और फिर स्टेट से हम लोग गोल स्टेट में आ सकते हैं। वो 3x3 का जो 8 पजल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाउन स्टेट फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा,
3 नीचे आ जाएगा, वो जो ब्लैंक स्पेस है वो ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डाउन है, ये अप स्टेट है, इस फिर हम लोग लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं और राइट साइड में भी कर सकते हैं। इस तरीके के हम लोग लेफ्ट राइट अप डाउन मूविंग 4 टाइप के होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेट से गोल स्टेट में हम लोग जा सकते हैं वो प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। तो स्टेट स्पेस सर्चिंग में ऐसा ही होता है। इस गेम में रिजल्ट जो हम लोग अप डाउन राइट लेफ्ट करके जो पाजल आएगा वो एक एक रिजल्ट होगा। तो उसमें टोटल रिजल्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट वैल्यू क्या आएगा, टोटल स्टेट ऑफ एक्शन कैसा होगा, तो सारी चीज वहां पर कैलकुलेट होता है। तो वही बोलता है स्टेट स्पेस सर्चिंग, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यूनिफॉर्म सर्चिंग एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एंड इन्फॉर्म्ड सर्चिंग, ठीक है। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग में क्या आएगा, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम है क्या है, अगर हम लोग कोई भी डेटा को सर्च कर रहे हैं और कोई भी गूगल में हम लोग कोई भी प्रॉब्लम बोलते हैं गूगल असिस्टेंट पे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डेटा सर्च कर रहे हो और कोई भी चीज कर रहे हो, तो कंप्यूटर लाइक ह्यूमन बिहेवियर वो काम करेगा। हम लोगों को जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा और वो खुद सच सके और खुद एनालिसिस कर सके, ऐसा उसमें एबिलिटी होगा। तो इसलिए हम लोगों को पास क्या होता है, वो मशीन लर्निंग जो होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है, सारी चीज हम लोग यूज करके उसका सही आंसर देने का ट्राई करता है कंप्यूटर, ठीक है। तो अनइन्फॉर्म सर्चिंग और इन्फॉर्म सर्चिंग क्या है, अनइन्फॉर्म सर्चिंग में होता है सर्च विदाउट इंफॉर्मेशन। अगर कोई डेटा हम लोग सर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो उसमें ब्लाइंड तरीके से वो सर्च करेगा। ब्लाइंड तरीके से सर्च करेगा मतलब समझो एक ट्री में 10 या 12 नोट्स है, तो वो क्या करेगा, 10 या 12 नोट्स सब नोट में अलग अलग से जाएगा और वहां पर जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो सर्च करेगा। तो उसको पहले से उसमें कोई इंफॉर्मेशन और कोई डेटा उसमें नहीं होगा, तो वो इस सर्च क्या होगा, विदाउट इंफॉर्मेशन। एंड उसके पास क्या होगा, कोई भी नॉलेज नहीं रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ओरिजिनली उसको क्या सर्च करना है और उस डेटा कहाँ पर है, वो तो उसको मालूम नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगा, मोर कॉम्प्लेक्सिटी टाइम और स्पेस के लेके आएगा। समझो एक प्रोग्रामिंग है तो उसमें नंबर ऑफ नोट्स बहुत ज्यादा है, अगर 100 या 200 300 ऐसा अगर नोट होगा तो उसमें क्या होगा, स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब वो सर्च करेगा सर्चिंग स्पेस बहुत ज्यादा होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसको सर्च करने में, ठीक है। तो इन अनइन्फॉर्म सर्चिंग में क्या होता है, डीएफएस आता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये सब क्या किस में आता है, अनइन्फॉर्म सर्चिंग में। और इन्फॉर्म सर्चिंग में क्या होगा, सर्च विथ इंफॉर्मेशन, इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगा तो वो कैसे सर्च करेगा और किसको सर्च करना है उसको मालूम है, तो इसलिए क्या होगा, उसको टाइम इसमें कम लगेगा। यूज नॉलेज टू फाइनल स्टेप फाइंड स्टेप टू सोल्यूशन, उसके पास नॉलेज या डेटा होगा, क्या डेटा और नॉलेज होगा कि सोल्यूशन में कैसे जाना है और सोल्यूशन कौन चीज का सोल्यूशन उसको मालूम करना है, क्विक सोल्यूशन उसको मिलेगा, लेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम और स्पेस, क्योंकि उसको मालूम है क्या सर्च करना है और कहाँ कहाँ उसको वो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम स्पेस बहुत कम आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ए स्टार, हेयरिस्टिक सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये सब चीज क्या आएगा, इन्फॉर्म सर्चिंग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्चिंग एल्गोरिथम इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
is a study of building agents that act randomly. Most of the time, this agent performs some kinds of search algorithm in the background, like order to achieve their tasks. In search problem consist of, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है, consist of a state space, a state, a goal test. A state space क्या है, set of all possible state where you be used. A start state क्या है, the start from where the search begins. And goal state क्या है, a function that looks at the current state, returns whether or not it is the goal state. ठीक है, तो पहले बोलो डॉली कुमारी। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तुम बोलो अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग में क्या क्या आता है, बोलो। डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अच्छा ठीक है, तुम बोलो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर जो यूजेस है, हम कहाँ कहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम लोग यूज कर सकते हैं? हेल्थ केयर, मार्केटिंग एंड फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ओके, गोल्डन कुमार। गोल्डन कुमार, कुमारी रूपम। यस सर। तुम बोलो इन्फॉर्म सर्च में हम क्या क्या यूज करते हैं? सर इसमें सर इंफॉर्मेशन के साथ सर्च करते हैं और टाइम इसमें कम कंज्यूम होता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लगता है। हाँ, और यहाँ पर जैसे अनइन्फॉर्म सर्च में हम लोग डीएफएस, बीएफएस ये चीज यूज करते हैं, तो इन्फॉर्म सर्च में हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? ए स्टार हेयर बेस्ट फर्स्ट सर्च। तुम लोगों का स्टूडेंट्स माने काउंट इतना कम क्यों है और कोई नहीं आ रहा है? सुबह में क्लास हो रहा है इसलिए? पहला तो 10 या 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट रहता था, आज तो 4 नंबर। आज क्लास एक ही है इसलिए शायद नंबर कम हो गया। ठीक है, फिर देखो सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर इन्फॉर्म्ड सर्चिंग का जो एग्जांपल है ह्यूरिस्टिक डीएफएस और बेस्ट बेस्ट फर्स्ट सर्च, तो वहाँ पे ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगा या फिर बेस्ट फर्स्ट होगा? बेस्ट होगा, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होगा वो अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग में आता है। ठीक है, ठीक सर। वो मैं जब लैब का क्लास है, शायद तुम लोग का फ्राइडे है या थर्सडे है, सॉरी थर्सडे में बीएफएस डीएफएस इसका जो प्रोसेस है वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा होगा, कम टाइम में तो ब्रीफली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सब जो चीज है डीएफएस बीएफएस ये लोग तुम पहले भी कर चुके हो डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, यस तो सर। मैं एक एक एग्जाम्पल पर वो कैसे सर्च होगा, और ये तो बहुत इजी है, डीएफएस बीएफएस तुम लोग मालूम पड़ सर जाएगा। बीएफएस पता है सर, लेकिन बेस्ट फर्स्ट सर्च नहीं पता है। ठीक है, वो बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है, हेरिस्टिक डीएफएस क्या है, ठीक है, और ए यस स्टार क्या है, मैं वो सब बोल लूंगा। और तुम लोगों का इंटरनल जो होगा, ठीक है, इंटरनल में मैं इस प्रॉब्लम का समझो एक ट्री और ग्राफ मैंने दे दिया, उसको डीएफएस कैसे निकालोगे और डीएफएस का रिजल्ट क्या आएगा, मैं ऐसा ही 2 या 3 प्रॉब्लम दूंगा। ठीक है, तो कर ठीक है लेना। सर।
जितना हो सके कर लेना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार एग्जाम पर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन थोड़ी सी मैथमेटिकल होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो सर्चिंग एल्गोरिदम में क्या आएगा, अनइन्फॉर्म सर्च एंड इन्फॉर्म सर्च। अनइन्फॉर्म सर्च में क्या होगा, दिस सर्च एल्गोरिदम इन दिस सेक्शन have no additional information on the goal node other than one provided in the problem definition. The plans to reach the goal state from the start state differ only by the order or length of action. Uninformed search is also called blind search, क्योंकि uninformed search में हम लोगों को पता नहीं चलता हम लोग क्या सर्च करना है और वो कहाँ पर मिलेगा, इसलिए हम लोग को ये ब्लाइंड सर्च हम लोग बोलते हैं। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में मेनली 3 तरीके का होता है, 3 टाइप्स। एक डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। Each of these algorithm will have a problem graph containing the start nodes S and the goal node G. यहाँ पर क्या होगा, एक स्टार्ट नोड रहेगा और एक उसको S में डिनोट करेंगे जो ग्राफ होगा, और एक गोल नोड होगा। गोल नोड पर क्या होगा, गोल नोड को हम G से डिनोट करेंगे, ठीक है। A strategy describing the manners in which the graph will be traversed to get to G. एक स्ट्रेटेजी होगा जिस तरीके के वो BFS में अलग होगा, DFS में अलग होगा, जिस तरीके के हम लोग स्टार्ट स्टेट से हम लोग गोल स्टेट में जाएंगे, उसका प्रोसेस अलग होगा। A fringe which is a data structure used to store all the possible state that you can go from the current state. And a tree that result while traversing to the goal node, and a solution plan which the sequence of nodes from S to G, एक sequence होगा उस node का, इस point आएगा। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च इज एन एल्गोरिदम फॉर ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग ट्री और ग्राफ डेटा structure. The algorithm start at the root node, selecting some arbitrary node as the root node in the case of a graph, and explore as far as possible along each branch before backtracking. और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या क्या आएगा? देखो, डेप्थ फर्स्ट सर्च एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, इसको हम लोग कहते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक। ये स्टेक फॉलो करेगा। स्टेक मतलब लीफो, लास्ट इन फास्ट आउट आएगा। उसमें ग्राफ में जो नोड होगा वो क्या होगा, लास्ट इन होगा, फास्ट आउट होगा, डीपेस्ट नोड तक जाएगा। उसका जो सर्च होगा, सबसे डीपेस्ट नोड जो होगा उसमें उसका सर्च जाएगा, और इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट क्यों होगा? क्योंकि इसमें तो हम लोग इन्फॉर्म नहीं है कि हम लोग कितना दूर तक जाना पड़ेगा। तो एक साइट पर जो ये सर्च करेगा उस साइट कंप्लीट हो जाएगा तो ये सर्च बंद कर देगा, तो ये इनकम्प्लीट होगा और नॉन ऑप्टिमल होगा, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा लगेगा इस पर। और मैं DFS, BFS और जो इन सर्च है, ये मैं जस्ट टॉपिक्स बोल रहा हूं, और इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली मैंने बोलूंगा, डिस्कस करूंगा, और ग्राफ लेके डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक ग्राफ और ट्री का स्ट्रक्चर होगा, कैसे काम कर रहा है मैं वो बोल दूंगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, वो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? TN, समझो डेप्थ फर्स्ट सर्च का ट्री जो है NI नंबर ऑफ नोड्स ऑफ लेवल अगर होगा तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी TN 1 + n² + n³ प्लस ऐसे होके n⁻d होता, वो तो
बिग 0 n to the power d, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहेगा. DFS इज कंप्लीट इफ द सर्च ट्री इज फाइनाइट. अगर सर्च ट्री फाइनाइट नंबर में होगा तो DFS कंप्लीट होगा. Meaning for given in finite search tree, DFS will come up with a solution if it exists. और optimality क्या है? DFS is not optimal, meaning the number of steps in reaching the solution or the cost spent is reaching, is it high? Optimal का मतलब क्या है? अगर तुम प्रॉब्लम तक और जो तुम सर्च कर रहे हो उसमें अगर तुम पहुंच गए और वो नोट सर्च में आ गए तो वो ऑप्टिमल नंबर आएगा. इसके मतलब मीनिंग द नंबर ऑफ स्टेप इन रीचिंग द सॉल्यूशन. और DFS में जेहेतु जिस DFS में क्या होगा, ये इनकम्प्लीट रहेगा. इनकम्प्लीट के मीनिंग क्या है? ये सर्च कंप्लीट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर फाइनाइट ट्री रहेगा तो ये सर्च कंप्लीट हो जाएगा, तब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. इसलिए इसको इनकम्प्लीट बोल रहे हैं और इसका क्या होगा? नॉन ऑप्टिमल होगा. अगर कंप्लीट नहीं होगा उसमें कितना स्टेप जाना पड़ेगा, अगर ये मालूम नहीं रहेगा तो ये क्या होगा? नॉन ऑप्टिमल हो जाएगा. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहेगा. अब क्या होगा? BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. Breadth first search is an algorithm for traversing or searching tree or graph data structure. In start, the tree root and or some arbitrary nodes of a graph, sometimes referred to as a search key. An example, all of the nearby nodes at the present depth prior to moving on the nodes at the next deepest level. BFS में क्या होता है? ये अनइन्फॉर्म सर्च ये भी होगा, क्योंकि हम लोग अनइन्फॉर्म सर्च के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो BFS में भी ये अनइन्फॉर्म सर्च होगा. इसमें क्या होगा? FIFO यूज करेंगे क्यू में. उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? LIFO यूज करते हैं. लेकिन BFS में हम लोग FIFO यूज करेंगे. ये स्लोएस्ट नोड होगा क्योंकि ये हर एक नोड पे सर्चिंग करेगा. जो गोल स्टेट होगा उसके लिए हर एक नोड पर ये सर्च करेगा एंड कंप्लीट होगा. टाइम बहुत ज्यादा लगेगा लेकिन ये कंप्लीट होगा. ये श्योर है कि ये कंप्लीट हो जाएगा एंड ऑप्टिमल आ जाएगा. ऑप्टिमल आने का मतलब क्या है? इसमें कितना नोड जाना पड़ेगा और इसका सर्च कितना लॉन्ग होगा वो तो मालूम है, इसलिए ये ऑप्टिमल होगा. एंड टाइम कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि ये तो सब नोड में ट्रैवल करेगा तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. Space complexity equivalent to how large can the thing gets and completeness. BFS is complete, meaning for a given search tree, BFS will come up with a solution if it exists. And optimality इसमें क्या होगा? BFS is optimal as long as the cost of all edges are equal. फिर आएगा यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च. यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या होगा? यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज डिफरेंट फ्रॉम BFS and DFS because here the cost come into play. In other words, traversing via different edge might not have the same cost. The goal cost is to find a path where the cumulative sum of the cost is least. BFS में जो नोट्स आएगा उसका सबका कॉस्ट सेम होगा, लेकिन यूनिकॉस्ट सर्च में उसका नोट का कॉस्ट सेम नहीं रहेगा, वो चेंज होगा. तो यही डिफरेंस है. तो नेक्स्ट डे मैं BFS DFS का एग्जाम्पल बोलूंगा और एक ग्राफ में वो कैसे काम करता है वो बोलूंगा. फिर हेयरिस्टिक सर्च बाकी रह जाएगा, ए स्टार सर्चिंग, बेस्ट फर्स्ट सर्चिंग. ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्यों हम लोग यूज करते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही है मशीन बिहेव लाइक ह्यूमंस, और हम लोग जो सर्च करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए
और मशीन को जो काम करना चाहिए वो सबसे स्लोएस्ट पाथ में कैसे काम होगा, इसलिए सर्चिंग आएगा। वो जो मैं पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं पहले ही बोल दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो न्यू इन फ्यूचर और अभी भी टेस्ला कंपनी का जो कार है जो यूरोप में और अमेरिका में जो यूज होता है उसमें ड्राइवर का जरूरत नहीं पड़ता। अगर तुम कार में बैठोगे और तुम्हारा कहाँ से कहाँ जाना है, वो अगर तुम वो कार को इंफॉर्मेशन दे दोगे तो कार तुमको क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन जहां पर होगा उसमें सही तरीके से वो लेके जाएगा। वो कैसे लेके जाएगा, उसमें ह्यूमन लाइक सब कुछ काम करेगा। गाड़ी का स्पीड क्या क्या होना चाहिए, वहां पर सिग्नल है या नहीं है, सेंसर काम करेगा, सेंसर से मालूम पड़ जाएगा उसके पहले जो कार है कितना डिस्टेंस में है। अगर सामने कोई समझो बैरिकेड है और कोई चीज है तो उसको मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरीके का वो काम करेगा। तो इसलिए जो सर्चिंग है तो वो सर्चिंग का प्रोसेस तो डेटा स्ट्रक्चर में जो है बीएफएस डीएफएस इसमें वो डेटा का सर्च होगा। तो वो सारी टेक्निक मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग में वो डेटा कैसे डेटा का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैसे रिड्यूस करता है वो सब कुछ मालूम पड़ जाएगा एक एक करके। वो उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो कंप्यूटर से ही लेना पड़ेगा जो कंप्यूटर में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन काम उसका अलग होगा। ठीक है। सर ये नोट्स सारा एलएमएस में अपलोड कर दीजिएगा। हाँ बोलो। सर इस जो आप नोट्स पढ़ा रहे हैं नोट्स एलएमएस में अपलोड कर दीजिएगा। नोट्स मैं बना के दे दूंगा, मैं नोट्स से नहीं पढ़ता हूँ। वो सही 2 या 3 चीज मैं देखता हूँ, उसमें जो चीज इम्पोर्टेंस है सब इम्पोर्टेंस चीज को मैं लेके तुम लोग को बोलता हूँ। मैं वीडियो देखता हूँ, गूगल से भी देखता हूँ, और कोई जो अलग कॉलेज में पहला कॉलेज में जब पढ़ाता था उसमें जो नोट्स है जो इन्फॉर्मेशन है, नोट्स मैंने नहीं बनाया था लेकिन तुम लोग अगर बोलोगे तो नोट्स कलेक्ट करके मैं दे दूंगा। ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर। मैं 2 या 3 नोट्स देख के मैं बोलता हूँ। देखना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसके बारे में ही बोलता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक्स तुम लोग बाद में काम आएगा। ठीक है, तो मैं टॉपिक्स वगैरह जो होता है, जो मेन होता है, मैं वही डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई नहीं कुछ नहीं होगा। जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स है वही आना चाहिए सब कुछ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में तो बीएफएस डीएफएस और जो यूनिफॉर्म सर्च है उसका एक ग्राफ करके मैं बोलूंगा, और एग्जाम में मैं यही सारे बीएफएस डीएफएस और 1-2 क्वेश्चन रहेगा, वो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। ओके सर। थैंक यू सर हाँ बोलो। हेलो हाँ सर, बोलो। जैसे कि हम लोग का सर एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह का फिर हम लोग का प्रिपरेशन करवा दीजिएगा ना इसमें, क्योंकि न्यूज़ हाँ हाँ, मैं सब्जेक्ट वो बोल दूंगा। देखो, जॉब में जो क्वेश्चन तुम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछेगा, मैं वो सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, और बाद में जब क्लास हो जाएगा, ठीक है, और 2 या 4 क्लास हो जाएगा तो एक बड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन बना दूंगा जो जॉब में तुम लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेन जो चीज है मैं वही पढ़ाता हूँ। जो जॉब में भी पूछेगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छा टॉपिक्स है और मेन टॉपिक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ठीक है, और मैं क्वेश्चन फिर दे दूंगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है उसका आंसर क्या है मैं वो बोल दूंगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, थैंक ओके, यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।